Hello friends, welcome to Gyan for Media and I am Dr. Kritika. Friends, NTA has already released its date for UGC-NET exam 2020 cycle, which is now due to be conducted in October 2021. So I am sure that most of you must be preparing well for your examination or preparations must be in its full swing. सो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेट एग्ज़ाम जो कि जून 2020 में कंडक्ट हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। सो दोज ऑफ यू हु आर एस्पायरिंग टू क्लियर देयर यूजीसी नेट एग्ज़ाम विद मास कम्युनिकेशन एज देयर सब्जेक्ट, दिस वीडियो इज़ अ मस्ट वॉच. Today we will be discussing about mass comm and maybe in the later classes we'll also discuss the paper 1. So अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू ज्ञान फॉर मीडिया because we keep uploading such free tutorials related to question papers or from the theory part of UGC-NET also. और इसके अलावा we also keep posting updates related to UGC-NET examination and we also give preparatory tutorials for paper 1. तो सभी students के लिए ये channel काफ़ी important हो जाता है. To remain notified, don't forget to press the bell icon which is given on the right hand side of your screen and please do like the video. Now without much ado, let us quickly start with the question paper. So as you can see on your screen, this is question number 1 of UGC-NET exam which was conducted in June 2020. So this exam paper has 100 questions in paper 2 and we will be discussing 25 questions today and the rest of the questions in the next tutorial. So let's quickly see what question 1 says. It says that social change training model in developmental communication has its origin from the following. So they have given you 4 statements and you have to choose the correct option from these statements. So the paper has become much lengthier when compared to the past or previous years question papers. अब ये लोग statements दे देते हैं and you have to select the correct statements from these 4 statements that are given here. तो थोड़ा सा डीप नॉलेज एंड कंसेप्चुअल नॉलेज यहाँ पे होना ज़रूरी हो जाता है. बात की गई है सोशल चेंज ट्रेनिंग मॉडल की. This model basically emphasizes the need to understand self and others in an effort to create community change, and this model is based on the Western social psychology. So यहाँ पे ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 है वेस्टर्न सोशल साइकोलॉजी, देन एशियन थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन, द चाइनीज मॉडल ऑफ सोशलिज्म एंड लैटिन अमेरिकन एजुकेशनल कम्युनिकेशन. सो ऑप्शन ए तो क्लियरली बिल्कुल सही है यहाँ पे. एंड उसके साथ साथ ऑप्शन डी जो कि लैटिन अमेरिकन एजुकेशनल कम्युनिकेशन है, यहाँ से ओरिजिन हुआ है सोशल चेंज ट्रेनिंग मॉडल का, जो कि आपने डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा. सो ए एंड डी आर द करेक्ट आंसर हियर. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस question. Now moving to the next question. Well friends, before I proceed, let me tell you that this is the original paper which was asked last year. So one of my students has provided me this question paper and आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से जब आपको आंसर की रिलीज हो जाती है तो दे गिव यू क्वेश्चन आईडी एंड दी आईडीज ऑफ ऑल 4 ऑप्शंस एंड फिर आप आंसर की में जाके अपने क्वेश्चन आईडी के रिस्पेक्ट में जो भी करेक्ट आंसर है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं. साथ ही साथ आपने क्या ऑप्शन चूज किया है वो भी यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पेपर में रिफ्लेक्ट करेगा आफ्टर द आंसर कीज आर रिलीज्ड, आफ्टर द एग्जामिनेशन हैज बीन डन. ओके, so this by looking at this screen you can just if you are the first timer, you are appearing in UGC-NET exam for the first time, you can understand that how the question paper appears to be जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे. और ये क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है क्योंकि जो स्टूडेंट रहे थे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस हिंदी में ऑप्ट किए हैं, कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में किए हैं. तो हम लोग दोनों ही तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. Now question number 2 says which news element is sometimes described as the basic news value.
अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखें, ऑप्शन 1 इज सॉफ्टनेस ऑफ इवेंट्स, ऑप्शन 2 इज ग्रेप वाइन, ऑप्शन 3 इज नेगेटिविटी एंड ऑप्शन 4 is corporate publicity. So very clearly you can make out the correct answer, which is option 3, negativity. So negativity is the news element जिसको कि हम basic news value भी कहते हैं. We generally say that good news is no news. तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिविटी की बात की जा रही है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज अ मैचिंग. यहाँ पे आपको समाचार पत्र के प्रथम प्रकाशन यानी कि सबसे पहले उस अखबार को किसने निकाला, फाउंडर ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, और यहाँ पे कौन से देश से वो अखबार निकला है उसको मैच कराना है. सो पहला है, यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में, और मैं यहाँ पे ऑप्शन की बात कर लूँ करेक्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर. क्योंकि अगर हम सबसे इजी से शुरू करते हैं तो जेम्स ऑगस्टस हिकी जो थे उन्होंने सबसे पहले इंडिया से अखबार निकालना शुरू किया था. सो द ईजीएस्ट वे इज़ टू आप जो सही ऑप्शन जो आपको आता है वो आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए. डी के करस्पॉन्डेंट में 1 होगा करस्पॉन्डेंस में, और डी के साथ में 1 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है विच इज़ ऑप्शन नंबर 3. तो ऑटोमेटिकली आपके बाकी सारे यहाँ पे मैच हो जाएंगे. इसके साथ ही जेम्स ऑगस्टस हिकी ने बंगाल गैजेट नाम का अखबार भारत से सबसे पहले निकालना शुरू किया था. सो हियर ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. एंड इसके अलावा अगर आप बाकी फाउंडर्स की बात करें तो थॉमस ऑस्कर ने सबसे पहला अखबार जो निकाला था वो इंग्लैंड से निकाला था. देन बेंजामिन हैरिस ने जो सबसे पहला अखबार निकाला था वो अमेरिका से निकाला था. और एडोनलोफ एमेल ने जर्मनी से सबसे पहले अखबार निकाला था. सबसे पहले कहें या फिर उस देश से निकाला था कहना ज़्यादा बेटर होगा, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है. Moving to question number 4 very quickly, since we have to cover 25 questions and I don't want it to be very time taking. So question number 4 says international communication theories are drawn from the following conceptual excuse me frameworks. तो यहाँ पे आपको अगेन ऑप्शंस दिए गए हैं, और अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यस इंटरनेशनल कम्युनिकेशन थ्योरीज जो हैं वो थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती हैं. थ्योरीज ऑफ रेटोरिक्स नहीं होती हैं, वो रिसेप्शन थ्योरीज होती हैं. और इसके साथ ही साथ थ्योरीज ऑफ आइडेंटिटी भी होती हैं. तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन थ्योरीज थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती हैं, रिसेप्शन थ्योरीज होती हैं, और थ्योरीज ऑफ आइडेंटिटी होती हैं. दे आर नॉट थ्योरीज ऑफ क्रिटिसिज्म एंड थ्योरीज ऑफ रिटोरिक्स. तो यहाँ पे ACD इज द करेक्ट और द करेक्ट स्टेटमेंट्स हियर. सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट question, which is question number 5, and it says that the Indian civil law does not recognize, and आपको यहाँ पे options दिए हैं, and we know that Indian civil law does not recognize the right to privacy. So very clearly option 1 is the correct answer here. ये सब laws हैं, ये factual हैं, they don't need any kind of explanation. So please do go through all the laws, क्योंकि इसी तरह के factual questions आपसे laws में से पूछ लिए जाएंगे. Now question number 6 says, from the sales angle a good and effective advertisement should. Now यहाँ पे सोचने और समझने वाली बात ये है कि sales के angle से इन्होंने बात पूछी है, तो you should not get confused about a good advertisement because they are asking with respect to sales. ओके, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपकी सेल बढ़े तो वो एक अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट होना चाहिए. उसके साथ ही जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि वो क्यूरियोसिटी जगाए आपके कस्टमर में, या जो आपका ऑडियंस है उसमें क्यूरियोसिटी जगाए. एंड थर्ड
थिंग इज दैट इट ट्रांसमिट अ कॉन्जीनियल मैसेज, ठीक है. प्रोड्यूस डिसअफेक्शन एंड डिसरिगार्ड करेक्टनेस, ये नेगेटिव टर्म्स हैं दोनों ही. सो दीज आर इनकरेक्ट. सो सी डी ई sorry, and C is also a negative term. Create prejudice against competitors, this is also a negative statement. तो यहाँ पे D, E, F जो हैं वो correct statements हो जाते हैं. Therefore option number 4 is the right answer here. Now let's move on to the next question, which is question number 7, and it says calculating sampling error is mostly appropriate with. Now sampling errors की जब बात होती है तो non probability samples की वहाँ पे बात होती है, माफ़ कीजिएगा probability samples की वहाँ पे बात होती है, क्योंकि जब इक्वल probability होगी रिस्पोंडेंट्स के सेलेक्ट होने की, वहीं पे आप सैम्पलिंग एरर मेथड यूज़ करेंगे. सो कैलकुलेटिंग सैम्पलिंग एरर इज मोस्टली अप्रोप्रिएट विद probability sample. So here the correct answer becomes option number 2. Now the next question says, question number 8, a survey that attempts to explain why certain conditions exist is known as, and the answer for this is option 3, analytical survey. This is a very direct question. Analytical survey, as the name suggests, you can understand that it attempts to explain why some certain things or condition or phenomenon has occurred, okay, or exist. तो यहाँ पे option 3 is the right answer, analytical surveys. Now the next question is question number 9. यहाँ पे आपको list 1 and list 2 दी हुई है, graphs दिए हुए हैं, and you have to give the correct description for these types of graphs. और यहाँ पे अगर हम बात करें तो लाइन ग्राफ जो है इट शोज चेंजेस इन डेटा रिलेशनशिप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. देन इफ वी टॉक अबाउट हिस्टोग्राफ, इट प्रेजेंट्स अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. लॉरेंस कर्व की अगर हम बात करें तो वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को दिखाने के लिए यूज़ होता है. और अगर पाई चार्ट की बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स कॉम्पोनेंट्स पार्ट, ठीक है. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो ऑप्शन 2 हो जाएगा. A goes with 3, B goes with 1, C goes with 4 and D goes with 2. So 2 is the correct answer here. Now moving to question number 10, it says which of the following are the characteristic features of the positive paradigms in research. Now paradigms in research is very important, and these are basically the patterns in which research is divided or conducted. And positive paradigm जो होता है, it states that true knowledge is based on experience of senses and it can be obtained by observation and experiment. Basically realistic approach होती है and it is guided by principles of objectivity. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पॉजिटिव पैराडाइम की. और यहाँ पे अगर हम देखें तो यूजेस क्वांटिफिकेशन, दिस इज़ द करेक्ट statement, mostly employed in natural science, this is also a correct statement. And it uses hypothesis, this is also a correct statement. बाकी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो पॉजिटिव पैराडाइम के रिस्पेक्ट में सही नहीं है, तो यहाँ A, B, C जो हैं वो सही स्टेटमेंट्स हो जाते हैं. सो ऑप्शन नंबर 4 हियर इज़ द करेक्ट आंसर. So I am not able to select it because this is a PDF folder. So A, B, C are the correct statements. So option number 4 is the right answer here. Now next question says अकस्मात घटित होने वाली गतिविधियां जो समाचार व्यवस्था के शेड्यूल के अनुरूप संगठनों की रिपोर्टिंग की संभावना बढ़ जाती है. इस समाचार के किस तत्व की व्याख्या की गई है? तो यहाँ पे बात हो रही है विद्रता की, एंड ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हियर. नाउ लेट अस क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12. ये भी अगेन हिंदी में इन स्टूडेंट ने दिया होगा, इसलिए हिंदी में क्वेश्चन पेपर में लिख के आया है. किसी ऐसे कर्मचारी के अनुसार जिसके पास कल हुई बैठक की जानकारी थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने विभागाध्यक्षों को कहा कि कर्मचारियों की छंटनी होगी. ये किस प्रकार की जानकारी है? तो ये बहुत क्लियर और सिंपल क्वेश्चन है. ये थर्ड हैंड जानकारी है, क्योंकि तीसरी
दो लोगों से हो करके ये इन्फॉर्मेशन तीसरे व्यक्ति के पास यहाँ पे पहुँची है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज साइमन कटलेट ने विपणन प्रक्रियाओं में जनसंपर्क की सहायता को सूचीबद्ध किया है. वह है, तो यहाँ पे आपको 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से आपको सही स्टेटमेंट चूज़ करना है. और यहाँ पे केवल ए, सी और ई जो है वो सही है, यानी कि विपणन प्रवक्ताओं की सार्वजनिक उपस्थिति की व्यवस्था करना. उसके बाद दूसरा आ जाता है बाजार क्षेत्र में सार्वजनिक अभिमत परीक्षण. और तीसरा आ जाता है उपभोक्तावाद विषय कार्यक्रमों में सहायता. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा. नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 14. श्याम बेनेगल की कौन सी फिल्म मोटे तौर पर 1940 के दशक की प्रसिद्ध मराठी नाट्य और फिल्म अभिनेत्री हंसा वाडेकर के जीवन पर आधारित है? दिस इज अ प्योर शॉर्ट factual question and the correct answer here is भूमिका. So that film was भूमिका. ये मूवीज़ और जो सिनेमा का पार्ट है ये फैक्चुअल है, आपको लर्न करना पड़ेगा. जो भी इस तरह की क्लासिक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 says the performance based advertising is specific to, again a quite a direct question and a factual one. So performance based advertising is mostly specific to online advertising. So here the correct option is option number 2, which is online advertising. Now let us see the next question, which is question 16, and it says they have given the elements and you have to match them with the correct description here. तो हम एक बार समझ लेते हैं कि कौन सी डिस्क्रिप्शन की यहाँ पे बात की गई है. अगर हम बात करें पफरी की, तो ये एक तरह के दीज आर दी प्रमोशनल मटेरियल्स और एडवर्टीजमेंट दैट मेक्स ब्रॉड एक्सेसरेटेड और बोस्टफुल स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज. एंड जब हम पफरी कह रहे हैं तो ये हम एडवर्टाइजिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं. देन pseudo event is any event produced by a communicator with the sole purpose of generating media attention and publicity. So this is a part of propaganda. Name calling यहाँ पे दिया गया है. Name calling है use of offensive names specially to win an argument. So this is used in respect of public relations. And grapevine, we all know that it is informal communication. However, grapevine is a very important term which has been asked in UGC-NET paper multiple times और आगे भी पूछा जा सकता है, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3. Explanation I have already given it to you. Now let us move on to the next question, which is question 17, and it says that which of the following is beyond the functions of advertising from advertisers perspective. अगर हम सारी यहाँ पे स्टेटमेंट्स को देखें तो सेलिंग द प्रोडक्ट सही है. एडवर्टाइजर्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सेलिंग द प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर. Now question number 18 says that traditionally what is the major objective of most marketing programs. So this is again a factual one. Basically marketing का मतलब होता है to sell a product or a service or an idea. So this is the traditional idea behind marketing, behind the objective of marketing. So the correct answer here is option number 2. Now let us move on to the next question, question number 19. विमर एंड डोमिनिक द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार मीडिया शोध के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए. तो here you have to you should know the steps of media research. This is what is asked in this question and the correct क्रम क्या होगा आपका यहाँ पे माध्यम, फिर माध्यम का प्रयोग और इसके प्रयोगकर्ता, देन कम्स मीडिया का प्रभाव एंड देन मीडिया का सुधार यानी कि सजेशंस. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ ADBC. So option 3 is the correct answer to this question. Now the next question, which is question number 20, says
again you have to match the element with its description. अगर हम इसकी बात करें तो ए जो है वो जाएगा कार्टून टू लिव इन अप दी पेजेस. आपने देखा होगा किसी पेज पे अगर कार्टून है तो इट लिव्स अप दी ऑडियंस. सो कार्टून विल गो विद लिव इन अप दी पेजेस. देन कम्स दी लोगो. लोगो का मतलब यहाँ पे है टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर सेक्शंस. देन टीयर आउट विल गो विद फॉर फ्यूचर रेफरेंस होते हैं टीयर आउट. एंड सप्लीमेंट्स जो हैं वो स्पेशल कंटेंट पेजेस होते हैं, ये हम सबको पता है. तो ए विल गो विद 2, बी विद 3, सी विद 4 एंड डी विद 1. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1. नाउ लेट अस सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 21 सेज. विज्ञापन कार्य नीति में निम्नलिखित में से किस विकल्प का सृजनात्मक रणनीति और जनसंचार रणनीति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर है ऑप्शन 2 का, लक्षित जनसमूह का. ठीक है, इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 विच से सतता संपाद यानी कि कंटिन्यूटी एडिटिंग में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली तकनीकें कौन सी हैं वो यहाँ पे पूछा गया है. और इसका मैं आपको सही जवाब बता देती हूँ, वो होगा 180 डिग्री रूल, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है 180 डिग्री. उसके बाद मैच कटिंग और आई लाइन मैचिंग, ये 3 जो है यहाँ पे सही स्टेटमेंट्स हैं. तो अगर हम बी डी ई देखें तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है. देन क्वेश्चन नंबर 23 सेज एक अपराध संबंधी स्टोरी में निम्नलिखित तत्व होने चाहिए. क्राइम स्टोरी की यहाँ पे बात हो रही है और क्राइम स्टोरी में घटना का विवरण होना बहुत ज़रूरी होता है. पुलिस के अनुसार आरोपी द्वारा किया गया अपराध, उसका उल्लेखन होना भी बहुत ज़रूरी होता है और साथ ही साथ आरोपी का नाम और आयु भी बहुत ज़रूरी होता है. मीडिया में विवरण की सीमा और इन इलाकों के लोगों का नाम, आयु और पते, इनकी ज़रूरत नहीं होती है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. केवल ए, बी और ई जो हैं वो सही स्टेटमेंट्स हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 24 सेज वेब 2.0 का अनुप्रयोग प्रयोक्ताओं को निम्नलिखित में से क्या बनने में सहायक होता है? और इसका सही जवाब है स्वायत्त उत्पादक. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 25 which is the last question for today. It says what is the correct sequence of the following media events? So this is a chronological question where you have to arrange these media events into the correct sequence. So सबसे पहले आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज़ लाइसेंसिंग एक्ट. देन विल कम वर्जीनिया बिल ऑफ राइट्स एंड देन फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. सो डी सी बी ए इज़ द करेक्ट सीक्वेंस हियर. ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है. इस तरह के क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस के लिए कैसे आप तैयारी करें, इसके टिप्स मैं ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में दे चुकी हूँ. यू शुड रेफर टू those videos to make your study easy and some tips to which you can use for your examination. So these were the 25 questions that we discussed from UGC-NET paper which was conducted in June 2020. I hope you might have found this video useful. आपको काम का लगा होगा. प्लीज़ इसको लाइक करिए और आपके जो भी दोस्त हैं जो UGC-NET की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है उनके लिए वीडियो ज़रूरी होगा या काम आएगा, उनको प्लीज़ आप शेयर करिए. प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो वी विल बी सून अपलोडिंग द नेक्स्ट part of this video where we'll discuss questions from question 26 to question number 50. Till then, please do subscribe to Gyan for Media and don't forget to press the bell icon which is given on the right hand side of your screen to never miss an update from us. Also, you can follow us on our Facebook and Instagram pages. Thank you very much and all the best.